So you wrote your first song for your crush. क्रश फॉर Okay. जिद्दो जिद्दी बहुत है तू, ना जाने क्यों, तुझसे प्यार बहुत है क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों. Very nice. Hello and welcome everybody. This is me Sadhna and this is my channel, The Attitude of Gratitude. Today we have a special guest, as I always say for my every guest. But this guest is a bit different than other guests. Why? Because it's something which can make everybody happy in the world, which is called music. I am a music lover, and here in front of me, Mr. Dinesh Nautiyal, he is sitting. He is a music composer. So let us talk to him about his journey and what is his passion and what he wants to tell our viewers that why music he chose for his life. So here we have Mr. Dinesh. How are you? Yeah, I'm good. And Yeah. Mr. Dinesh, can you please tell me about yourself so that people will actually know who you are? my name is Dinesh Nautiyal, and I'm working as a music artist. And in the music fields, I'm working already from music scratches to last, and master mixing, and final output, and writing also, and composing also. Okay, so you sing also sometimes? Yeah, I sing also as well as. ओके दैट्स नाइस सो मिस्टर दिनेश आप मुझे ये बताएं कि आपकी म्यूज़िक की जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी, मतलब कब आपने डिसाइड किया कि आपको इसको एज अ पैशन आगे लेके जाना है अपनी लाइफ में? मैं उस टाइम पे 14 इयर्स ओल्ड का था, तो मैं आई वाज लिसनिंग द वेरी पॉपुलर सॉन्ग ओ मेरे दिल की चैन. ओके ओ मेरे दिल के चैन. So I was passionate about for that time, and I thought at that time I have to do something else. Then I sing a song in front of my brother also. So they suggest me, bro, you should try something else in the future. So hopefully you can get something else, like the big things. So then I started, okay, I will start. Then I was learning from last 18 years for my music career. I given to music career. It's a very small. People is giving whole life, but it's okay for me. It's small things what I can do best. So every day we are learning. So we will not say we are expert. Every day we are learning the things, new things, and what we have to do, what we have to make, and we are surrounding the people. Like that we are getting the ideas and the things. Okay. So we are doing the implement for. So you are welcoming everybody's ideas, right? 100%. मीन्स आपको नहीं पता कभी कहीं से भी आपको कोई एक ऐसा वर्ड या लिरिक्स मिल सकता है that you can put it in your songs. Yes, I can do That's that. very nice. That's because the ideas actually what happens if we are open to take ideas. So we get more ideas. Sometimes we don't get the idea what another person is giving us. So that's the plus point. And That's I the really plus like actually those people who actually love to take ideas and suggestions from people. Mr. Dinesh, you are doing music composing. Yeah. So you told me that you are doing this is in India right now. Yeah. And here you are working. Yeah. So what is your profession as a work, like in the corporate world? Corporate, I'm doing as a design engineer in the Expo 2020. Okay. And just after the finish my job 9 to 5, then I'm using my time for the music things. And after every day I have to spend 7-8 hours in the music studio. Wow. And then like every time we have to learn the things, what's going on, what we can do the make best. Error is there. At the moment we are the human, so I believe we have to do best from our side. Right. Remain is a listener who can suggest me, this thing is not good, these things you can do that make better. So I'm getting some ideas also, as well as working also, and the working with like some ideas and some inputs, so that I can make another songs, I can make better in the versions. version. Okay. See, I just want to tell this to my viewers. मैंने बहुत सुना है लोगों से ना. I've heard so many times. I am tired of 9 to 5 job. After that, I can't go for any other passion of mine because I'm totally stuck. Being a male, where he have to cook himself because he stays alone, cook himself, wash himself, and after that, he is so much passionate about his music.
where he want to put his 100% efforts into the music and he is doing something. I just want to ask one more thing and tell my viewers that the 2 albums he has already released in India, one has around 8 lakhs. 8 lakhs. 8 lakhs. 8 lakhs. 8 lakhs audio listeners. Audio, yes. And the other one, the YouTube one, is having around 2 lakhs. Right? Yeah. Around 2 lakh viewers who are actually watching him and liking the song which he is singing for us. So that's very nice. Means you are actually an inspiration for those who are actually doing nothing except, just working. Yeah. So my suggestion is to all of you, please live for your passion, because it is very important. You never know what is taking you on which level in future. Keep following your passion and keep struggling in your life for your own passion. So let's come on the topic now. So the topic is music today. What do you think? What is music? Music is things, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम डायरेक्ट बात के थ्रू तो बोलते हैं, बट अगर हम उसको म्यूज़िक के थ्रू बोलेंगे तो सीधा वो टच करेगा दिल को टच करेगा. मेरी परिभाषा तो ये है. तो आई लाइक कि सम सेंटेंस, सब कुछ लोगों के दुख हैं, कुछ लोगों की खुशी है, कुछ लोगों के डांस करना चाहते हैं. some people they want to listen like rap flow also. So you mean to say music is celebration. Music is celebration. Why? Anything what we are celebrating, yes, it is music. Yes. And there are things when we are sad, when we are upset, yes. The expression is music. So and music also is something which I am actually always into. Why? Because I was a DJ before and I can understand. Somebody asked me long time back, किसी ने मुझसे पूछा था, आप DJ हो, आपको म्यूजिक पसंद है? तो I said कि हाँ, मुझे म्यूजिक पसंद है, तभी मैं DJ हूँ. And that was also my passion. And किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? आप एक म्यूजिक लवर से ये क्वेश्चन पूछना कि आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है, इट्स कॉल्ड नाइंसाफी, राइट? करेक्ट. म्यूजिक तो म्यूजिक है, हर फॉर्म में पसंद है. अच्छे मूड में अच्छा म्यूजिक पसंद है, थोड़े सैड में सैड पसंद है, रोने वाले में रोना वाला पसंद है. सो म्यूजिक इज एवरीवेयर एज पर व्हाट आई थिंक. करेक्ट. आप किस तरीके से उसको फॉर्म करते हैं ताकि लोग सुन सकें उसको, दैट इज अ आर्ट. यस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस art from Mr. Dinesh today. So Dinesh, I have some questions for you. So let's start from your journey. Okay, I started my career, like last 18 years I'm struggling. You told me that, yeah. Yeah. Then, I can work in the whole form, not only the song, not only the lyrics writing. I can write also, I can sing also, but I'm learning also. It's not like that. Learning should never be stopped. Yes. Yeah? So whenever I will say I learn everything, so no. At the moment I'm human. Error is there. Some things, like we want to connect the peoples. But in the flow, maybe sometimes you cannot the comparison between, big artist and small artist, right? Artist is artist. So, but there's a name behind that. Right. I was listening the Lata Mangeshkar ji. Okay. She is my favorite, singer and but it's a time. It's the actual things in our life. So we have to do our best first, I believe, and then remain, do. Failure is not like think I produce one song and I failure. Oh, I will not do. Try your best. One, it will not hit. It's a 52 cards. You have to put one by one. Till you reach your destination, yes. You have to play. Yes, you have to play. Right. You have not any option choice. You have to play every time, every moment. So we don't know. The one moment can change your whole life. So I just asked you a question, but you gave me the other information. Yeah. The question was कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? जर्नी इन द सेंस व्हेन यू थॉट कि मुझे इसमें आगे कुछ करना है. मैं उस टाइम 14-15 साल का था. तो मैंने उस टाइम से अपने को डिसाइड कर लिया था. मैं ये नहीं कहूँगा 6 साल का था, 7 साल का था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो कोई इतना बड़ा कोई सिंगर है नहीं, आर्टिस्ट है नहीं. तो मैंने स्टार्ट 15 से मैंने एक थॉट अपने को प्रोसेस किया था कि यार मुझे भी करना चाहिए. ये लोग कर रहे हैं. उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था. उस टाइम का जो स्ट्रगल फेज था, जो लोग कर रहे थे, इट वाज टोटली डिफरेंट. अभी क्या है, एक चीज़ आपके पास में है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू कैन पुट, और आफ्टर दैट आपकी पब्लिक जो है
they will decide and they will like you. Public is a god, no? Well, yeah, 100%. आप लोग भगवान हैं. आप चाहें तो यहाँ पहुँच जाए दुनिया, आप चाहे तो बंदा, मैं कह रही हूँ, पत्ता भी ना हिले. Correct. But ठीक है, we have also, we call universe, it's a big power. Yes. तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते बहुत एक्सपीरियंस हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत स्ट्रगल हुए. समटाइम लाइक आपकी एक जॉब है, आप उससे अपना घर चलाते हो, तो आप खाली भी बैठे. बट मेरे मूड में था कि आई विल डू इट. तो स्टिल नाउ ऑल्सो आई हैव टू अचीव दैट गोल. So you actually replied on my second question. I was asking, what do you think yourself after 5 years from today? So future की बात अगर करी जाए तो आपका क्या thought है? आप आज से अपने 5 साल के बाद आप कहाँ पे देखते हैं अपने आप को? आफ्टर 5 years मैं तो ये करूँगा, ये चाहूँगा कि मैं उस लेवल पे पहुँचूँ जहाँ तक सब मेरे नाम को जान सकें, मेरा नाम इस्टेब्लिश हो सके. एक आर्टिस्ट पैसों का भूखा नहीं है. It's only the appreciation for that part. So this is the earning. So I don't want anything else. My viewers, my listeners, this is my property. This is my everything. So आजकल actually जैसे पहले का थोड़ा टाइम होता था, जिस टाइम पे हम बच्चे होते थे, उस टाइम पे मे बी थोड़े पैसे दे के अपना रील आगे करा दिया आपने, या म्यूजिक डला दिया. देयर आर पीपल जिन्होंने ऐसे भी अचीवमेंट किया है. बट आजकल के टाइम में आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट पीपल आर ओनली गोइंग बिहाइंड द रियल टैलेंट. Yes, of course. बिकॉज पहले हमें डिग्रियां लेके कॉलेजेस वगैरह में अप्लाई करना पड़ता था, नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता था. बट आजकल पीपल आर सीइंग how much capable you are to do something. And if your music has a power to change the thought of people, or to give them the happiness what they actually want. So of course, why not? 100%. You will be known soon in Dubai. People will know you. As you said that you are opening your own branch in Dubai soon, 100%. As the business license is already in process. Yes, correct. So I would like to tell you all that he is looking for real talent. Yes. Who can write or sing or can do the composition or anything. Like I don't know the more fields in what. I just know how to just sing or something. But yes, there are more designations in this journey as well. So he is looking for the real talent. If you have talent, please contact us. He'll be there to support you, and why not together? 100%. So let's come on to the other topic. We have so many kind of music. There are classic music, there's rap, there's XYZ, and list goes on. Which one is your favorite stream? Which type of music you like the most? I will let you know the one part. I'm the love specialist, first of all. Okay. Breakup specialist also. Okay. And then romantic and the sad also. Okay. So like I was performing many type of songs like that, hip hop and everything, right? Then suggest my one of colleague, you can sing only the sad, romantic and love type. So you can get people are actually more into love now. So you should be making a lot of love songs. Maybe love can be a part of love is a language of telling somebody, and music is a language of 100%. expressing your emotions to somebody. So yes, that's a good thought. But as per me, what I'll suggest you in front of public, you create one song for us, for just to celebrate anything with happiness. Means, can you imagine that I'm sitting here talking to you and there is music behind which has no language of love, no sadness, nothing. It's just happy moments. Something like that. If you try to create something for us, that will be great. Right? Right. Yeah. So next topic, I just want to know the theme. You said you are into love or maybe heartbroken music, or maybe something similar to that. Correct. If we'll give you a choice, as I'll be asking a question, which kind of songs they want to listen, or which kind of songs they want you to make. So are you open to take that challenge? Like if somebody is giving you any 100%. Other kind. Any type of music I can produce. This is the first of all. I'm the only one.
right? I'm not saying I'm doing my best what I can do that for, for the happiness, for the whatever is there. But the thing is that I'm achieving my goal, and I can produce anything else. Even also, I know there's a 100%, some songs 100% because I'm the specialist for that part. Some songs is like 80, 90, something percent is. So it's, like up and down. But the thing is that I can do that. Why? Because I'm putting the effort last 18 years. Just Means I you are Hard work. good enough to take challenges, and yes. you are accepting it. Accepting. That's lovely. That's very nice. Okay. Now the question is, tell me about your first song, First song. which is there in audio, which has around 8 lakh of audio listeners. Tell me about that song. I will tell First, you tell me just few lines. Tell me about the song, and then from where you got the inspiration to put that on the audio release channels, and why you did it. Just I was in the night in my home, and I seen someone else. She was very pretty, so I thought I have to return something else. So I write for this one. I try to talk and convey and everything. So she was, she's saying. Means your crush. Crush, yes, 100%. Okay. So you wrote your first song for your crush. Okay. Then I read for this one, and 8 lakh video, 8 lakhs views. So in the YouTube, Dinesh Notial Music. So it was there. Jiddo jiddi bahut hai tu, na jane kyun, तुझसे प्यार बहुत है क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों. Very nice. So like that. Very nice. So I produced for that song, and it was a story about what's going on behind, and I tried to convey her, but it's so tough. But I thought I will write 100%. So See, it is more important. इससे अच्छा क्या होगा ना कि किसी को आप चाहो और उसके लिए कुछ ऐसा बना दो, चाहे वो मिले ना मिले, जिंदगी भर आपको याद की तरह से साथ में रहे. So maybe आपका passion ही यहीं से start हुआ होगा ना? 100%. That's very then nice. I written. Then in my life I got someone special. Okay. And I You got married. And I broken totally because after marriage, Okay. So and I totally broken. So तो second song जो आपने बनाया, वो किसके लिए बनाया? वो सेकंड सॉन्ग मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था. तो मैंने उसको कन्विंस किया काफ़ी ट्राई टू कन्विंस किया, पर हो ही नहीं बात. मेरे पेरेंट्स से भी कन्विंस किया, बेटा दिस इज़ अ लाइफ एंड यू हैव टू थिंक अबाउट फॉर दैट वन, बट शी लेफ्ट मी. So then I write the song, I given everything my best. But thing is that after that, I reach my, egoistic. So means you are the queen for your part, I'm the king my part. So what to do is Actually, music कैसे आता है ना? या तो आपका दिल टूट जाए या फिर आप बहुत ही खुश हो अपनी लाइफ में. Correct. तो ये सच है. Actually कहते हैं ना कि लेक्चर वही इंसान दे सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर जिसने एक्चुअली वो फील किया है. मैं अगर आपको यहाँ पे बैठ के एक म्यूजिक कंपोजर की जर्नी के बारे में बताऊँ तो शायद मैं उसको जस्टिस नहीं करूँगी, क्योंकि बिकॉज मैंने वो फील नहीं किया. तो फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फीलिंग से जो चीज़ बनती है दैट इज़ ऑलवेज लवली. आई सीन इन माई लाइफ लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ थिंग्स. इट विल कम इन फ्यूचर ऑल्सो, so which is relate to people, some issues I have like that, bro, how I can impress my girlfriend, how I can do these things. So there's many things is upcoming with with many artists. I'm trying to achieve the more and good one, best one I can give from my heart. So मेरा यही next question था आपसे. My another question was how many songs are there already in pipeline? It's behind that almost 20-30 song. So अभी इस साल में हमारे पास क्या आने वाला है? इस साल में आपके पास मेरे listeners, मेरे viewers के लिए, आपके लिए भी, तो almost 10 songs release होंगे इस साल में. इस साल में. Very good. And my video is also coming. So I'm working on it, and I want to be shoot for that part from my side, as a acting side, as art director. So I will shoot for that part also. That's and nice. The cinematographic camera I will use, heavy camera. Okay. So let's see that. It's a slow, but no, we are actually waiting for it. And
गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम और मे बी यू कैन फॉलो हिम ऑन यूट्यूब एज वेल because his upcoming songs are coming and he said that he is looking for the new talent because उनके पास जितना है उनको और भी चाहिए, right, and he is very open to take your suggestions. आपके पास अगर आप म्यूज़िक लवर हैं और आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको. इनके ईमेल आईडी और इनके सारे कांटेक्ट डिटेल्स हम अपने वीडियोस पे डालेंगे और आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं मुझे इनकी डिटेल्स लेने के लिए. इफ़ समबडी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट. 100%. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू इज़ अपकमिंग वीडियोस के बारे में हमारे पास हो चुका है एज सच कुछ ऐसा हमने मतलब उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस थे, बट आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ इनफ. ओके, अब मुझे ये बताओ, लाइफ के अंदर जब आपको एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी होगा जब आपको लगा होगा कि कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा टाइम हुआ होगा. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन यू गॉट द डिवोर्स एंड समथिंग लाइक. सो उस टाइम पर हाउ दिस म्यूजिक हेल्प्ड यू? That time I or was, maybe sorry to interrupt you, I can say how your passion helped you. just I will say that like there's a two lives, especially for me. People have also. So, but for me especially, like one is personal life, another one is a professional life. Right. I was doing the professional life very nicely, but thing is that suddenly personal life is gonna like down. So मैंने सोचा यार सब ये तो ख़त्म हो ही चुका है, इसका तो कुछ रिजल्ट, क्योंकि वो मुझे ऑब्जर्वेशन हो चुकी थी, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि देयर वाज अ पर्सनल इशू. मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे पॉडकास्ट में, सबका अपनी एक वैल्यू है, दैट्स अ पर्सनल. हाँ, वी डोंट. बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैंने अपना काम तो नहीं छोड़ना. मैं एक सोच के आया हूँ कि मेरी एक सोच को खाली खुदा ही गिरा सकता है, Right. इंसान नहीं गिरा सकता. आपकी सोच और आपका डिटर्मिनेशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है. हाँ जी. कि आपने आज तक जो अभी तक आपके मतलब पिछले थोड़े 1-2 सालों में जो ये सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं, दैट वी कैन सी कि अगर वो सोच नहीं होती और वो पैशन नहीं होता और वो डिटर्मिनेशन नहीं होता. करेक्ट. मैंने अपनी लाइफ में आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. करेक्ट. ठीक है, कुछ फ्रेजेस भी हैं जो बता सकते हैं, बट ऑन द कैमरा समटाइम्स आई ऑल्सो फॉरगेट, बिकॉज जब प्रिपरेशन नहीं है उस चीज़ की तो दैट्स फाइन. बट मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगी, इफ़ you are very determined about something, or if you are focused and if you are ready to do hard work, then nothing is impossible. 100%. Because we are listening from our childhood that impossible says I am possible. Correct. 100%. So that you proved here, and I really wish you luck for your further music albums. और मैं चाहती हूँ कि आपके और भी अच्छे आए ताकि हमें और अच्छे थोड़े डिफरेंट सॉन्ग्स सुनने को मिलें. आप हमारे जो लोग बैठे हैं, जो आपको देख रहे हैं, कैमरा में देख के बताएं, आप उनको एज पैशन से रिलेटेड, जो लोग रुक जाते हैं कि हमें पैशन है म्यूज़िक का, करना है नहीं करना है, दोज हु आर इन डिलेमा, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि उनको करना चाहिए अपना पैशन फॉलो या नहीं करना चाहिए? देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, कभी कभी पैसे होते हैं नहीं होते हैं. इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, आप ये उनको ज़रा बताएं. मैं सभी व्यूवर्स और लिसनर से यही बात कहना चाहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ. फर्स्ट पार्ट, पैसे हैं नहीं है वो तो एक अलग चीज़, वो अलग कंसर्न है, दैट इज़ आई एक्सेप्टेबल फॉर दैट पार्ट ऑल्सो. बट अपना ड्रीम, एनी ऑफ कॉस्ट, एनी ऑफ थिंग्स यू हैव टू अचीव. अगर आपकी लाइफ में ड्रीम्स बड़े नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते. तो यू हैव टू ड्रीम बिगर. अपनी चादर से बाहर पैर फैला के तभी कुछ हो सकता है, वरना उसके बाद बैठे बैठे कुछ नहीं होगा. बैठे बैठे कुछ नहीं मिलती चीज़ें. You have to hard work and like believe in yourself, and every time you have to learn, like do it. One day it will come definitely. In the world, I don't think so कि कुछ भी achieve नहीं हो सकता. Anything you can achieve, believe in yourself. That is the main. That's very important. Yeah. जो लोग एक्चुअली म्यूज़िक को अपना पैशन समझते हैं कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और मुझे कुछ करना है, बट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ही इज़ गिविंग यू अ चांस. कम टू हिम. He is giving you a place where you can show your talent to people. 100%. Second thing, जो चीज़ की ज़रूरत हमें है ना, उसके लिए पैसे हमें कमाने पड़ेंगे, दुनिया हमें नहीं देगी.
तो आपको आपके पैशन को, आपका पैशन कितना पागलपंती की हद तक है, हाँ जी, उस पागलपंती की हद तक है अगर कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कमाएं और उस पर लगाएं एंड यू विल गेट सक्सेस, दैट इज फॉर श्योर. करेक्ट. That's very nice message to those people who are actually stopping themselves, जो रोक रहे हैं अपने आप को कि हाँ कुछ करना है, नहीं करना है, कैसे करना है. तो करने और नहीं करने का तरीका भी आपको पता है. राइट. किसी गलत रास्ते पे जाके आप कोई काम ना करें, ये मेरी तरफ से आपको पर्सनल एडवाइस है. 100%. बिकॉज गलत किया हुआ आज तो फल जाएगा, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में आपको नीचे ही गिराएगा. राइट. मगर अगर आप दिल से चाहते हैं कुछ करना और आपका जो नियत है वो बहुत स्ट्रांग है, yes. तो आप अचीव ज़रूर करेंगे जो आप चाहते हैं. 100%. थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. हार्डवर्क के बगैर ना, वो कहते हैं ना छोटे बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती है जब तक वो रोए ना. 100%. तो उसी का हिसाब है कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको ही करना पड़ेगा. अब ऊपर से खुदा तो नहीं उठ के आएगा ना. राइट. बाकी आपको बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे, जैसे कि आज ये हमारे साथ बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर टैलेंट. There are so many people who are 100%. actually seeing talent, but अगर आपका talent असली में yes. किसी का दिल छूता है तो why not? We are really happy to have people like that. And this is really nice platform with Mr. Dinesh Nautiyal. Please join him for his journey, and maybe his journey will become your journey too. So that's very nice. And Mr. Dinesh, tell me one thing. Very simple. Yeah. अगर मैं आपको बोलूँ कि पहला thought सुबह morning में उठ के आपको क्या आता है? पहला थॉट्स नाइस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला थॉट्स ये रहता है, मैं दिन जब स्टार्ट करता हूँ तो मेरा एक ना स्केड्यूल होता है दिन का कि ठीक है 9 to 5 जॉब, दैट इज़ ओके. मेरे को 5 के बाद पैक करके मेरे को स्टूडियो में जाके क्या करना है, सेकंड थिंग्स मेरा वो स्टार्ट होता है. तो मेरे को फिर करना क्या होता है कि चीज़ें हैं मेरे पास, मेरे को अपने को भी लेके चलना है और मेरे साथ जो नीचे अभी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, या जिनके पास कुछ टैलेंट है वो आगे करना चाह रहे हैं, तो उनको भी देखना है. और मैं नहीं चाहता, मैं तो पहुंचूंगा ही टॉप लेवल पे, बट लेकिन मेरे साथ साथ जो उठेंगे, मैं नहीं उठूंगा, मेरे साथ सारे ही उठेंगे जो मेरे साथ अटैच रहेंगे. पावर है ना. हाँ. पावर एक बंदे को अगर एक चीज को पुश करेंगे तो उसकी हल्की होगी, और अगर दुनिया आपके साथ है तो फिर तो पावर की क्या जरूरत है. उंगली लगाएंगे तो काम हो जाएगा, सब हो जाएगा. राइट. तो दैट इज वेरी नाइस दैट आप सुबह उठ के सबसे पहला ये थॉट आपके दिमाग में आता है कि पूरे दिन का आपका व्हाट इज द टाइम टेबल एंड हाउ यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर पीपल हु आर वर्किंग विद यू. राइट. बिकॉज दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 100%. अगर पूरी दुनिया में मैं अपने बारे में सोच के करती रहूंगी, मुझे कप पीनी है चाय की, मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, तो मुझे क्या करना है, मैं मुझे से निकल के जब हमें करना होगा, आई थिंक तभी वी विल बी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. राइट. आपको हमारे व्यूअर से क्या चाहिए, ये आप यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ कैमरा उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं. जेन्युइन, आप उनसे जेन्युइन रिव्यू भी मांग सकते हैं, आप उनसे सपोर्ट भी मांग सकते हैं, आप उनको सजेशंस भी देने को कह सकते हैं. दैट इज़ अप टू यू. They are here. You can just tell whatever you feel like. मैं व्यूवर्स और लिसनर से एक ही बात कहना चाहूँगा. पहला तो मेरा चैनल है दिनेश नौटियाल म्यूज़िक यूट्यूब पे, एंड you will find me Spotify and Jio Saavn and everywhere platform. Audio you can find means everywhere. The thing is that second things, जो भी रियल आर्टिस्ट हैं जो कुछ करना चाहते हैं बड़ा, तो देखिए सोच के तो कुछ नहीं होने वाला, आपको करना ही पड़ेगा. मैं एक सपोर्ट कर सकता हूँ बैक एंड पे, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पता है कि कौन सी सेंस कहाँ पर क्या प्ले होगा, तो मुझे उस चीज़ के बारे में भी मालूम है, तो मैं उस चीज़ के लिए गाइड कर सकता हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा. थर्ड थिंग होती है भैया देखो, चलना तो खुद को ही पड़ेगा. हम ना, अब मैं तो लेके नहीं चलूंगा. हाँ, आप रास्ता दिखा सकते हो, रास्ता चले ही ना तो फिर धक्का तो नहीं मार सकते. अब आपने अगर जब तक अब मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ यहाँ पे, अगर मैं सोचता ही नहीं तो मैं कैसे पहुँचता. तो मुझे एक वो था कि भाई मुझे उधर जाना है, मुझे वो काम पॉडकास्ट करना है, फिर उसके बाद मेरे आगे के स्केड्यूल हैं वो मुझे फिक्स करना है. तो फिर आज का हिसाब से ही है. इवन ऑल्सो मेरे बॉस ने भी कहा छुट्टी ले लो, जाओ पहले फर्स्ट अपना काम करो. तो थैंक्स फॉर माई बॉस ऑल्सो एज वेल एज, एंड मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सराउंडिंग इतने अच्छे लोग हैं, और मैं बिलीव करता हूँ पॉजिटिविटी में. पॉजिटिव रहो, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे. मुझे आज बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आज तक मैंने बहुत लोगों से बात करी है. एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस. I don't know how true it is, because I have been through like in my working career,
I had my 2 bosses and they are still there. If I need any support from them, they are there on the call. They are just call away. And मैं उनका नाम नहीं लूँगी, हो सकता है कि maybe they will not like it. Right. And maybe they don't want to show means me to say their names in front of camera. But yes, I had support with them. And मेरे को छोड़ के मैं सोचती थी कि मैं ही पागल हूँ. But what I am thinking कि पहली बार एक बंदा अपने बॉस को अप्रिशिएट कर रहा है. And I'm really happy that your boss is supportive. 100%. बिकॉज जब तक आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती ना, एक्चुअली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है लोगों को, बहुत ज़रूरत है. इतनी ज़रूरत है कि अगर एक बंदा किसी के पीछे खड़ा हो जाए ना जाके कि आई एम देयर विद यू टू डू इट, तो आप अपने दिल से वो काम करते हो, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की. एंड आई थिंक दैट इज़ योर बॉस. से माय रिगार्ड्स टू हिम एज वेल. करेक्ट. क्योंकि मेरे बुरे टाइम में मेरे बॉस लोगों ने साथ दिया है. वेरी नाइस. एंड मैं उस चीज़ को आगे लेके भी जाऊंगा. Very nice. मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? एक इंटरनेशनल लेवल पे बॉस मेरे गाने को सुन रहा है, हिंदी Very गाने nice, को. very nice. तो इससे बड़ा रिकॉग्नाइज आई डोंट थिंक सो मैं मानता हूँ. और Recognition, अपने को yeah. मैं लकी भी मानता हूँ कि दे आर लिसनिंग एंड दे आर आस्किंग टू मी व्हेन नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग, Very व्हेन nice. नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग, लाइक दैट. यू नो लाइक दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, आई एम नॉट हंग्री अबाउट मनी. मनी इज अदर थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एज अ आर्टिस्ट, we require our appreciation. That is the main recognition for us. So this is the main part. आपने बोला you're not concerned about money, but you are concerned about respect. Respect, 100%. मैं इस बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी. पैसे की ज़रूरत इस दुनिया में हर इंसान और Right. मे भी जानवर सबको Right, है. right, 100%. Right? Right. मगर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उसे दिल से कर रहे हैं, Yes. और अगर आपको लोग अपने प्लेटफॉर्म पर आकर वो टैलेंट दिखाने का, इफ somebody is engineer or somebody is a banker or anybody, Yeah. somebody is giving you money, please respect that person. Yes. 100%. गुस्सा माँ बाप को भी आता है घर में, 100%. जुतियाँ उनसे भी पड़ती हैं. हाँ जी. Sorry to say that, but it is really funny. Yes. Means हम अपने माँ बाप को तो गाली नहीं देते हैं. 100%. तो उस इंसान को गाली क्यों देते हैं जो हमारे को आगे चाहे कि हमारा काम ढंग से करे, ताकि हमें एक डेजिग्नेशन अचीव कर सके. 100%. और हमें जो इंसान ने एक सिलेक्शन करके एक जगह पे बिठाया है, 100%. और जो हमारे पास है, हमें जो वो सुना रहा है, कल को हो सकता है हमारे लिए वो कितना सुन रहा हो. Right. We never thought of that. 100%. But we are always there to tell that person, my boss is like that. Please respect. Yes, Please respect somebody's efforts. And that is really from my heart. I'm really happy to hear that you are the person who actually appreciate your bosses. 100%. And बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो अपने आगे के ग्रैटिट्यूड को देखते हैं. 100%. And this is the theme of my channel, which is attitude of Yeah. gratitude. Count your blessings. Be grateful for your blessings, what you have today, in the form of your family, your bosses, your work, your money. Because पैसा तो सबको चाहिए, 100%. राइट? हाँ जी. पैसा नहीं तो आज आप सांस भी नहीं ले सकते. 100%. मगर वो पैसा लाने के लिए जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, always remember their efforts, whether it's for 1%. Yes. That's very nice. I'm really happy to hear that. अब मुझे एक बात बताएं कि सपोज कोई एक बंदा म्यूज़िक बनाने का कोशिश करता है, तो एक अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए और एक अच्छा एल्बम बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है? दैट वाज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक अच्छा बनाने के लिए देखिए डिपेंड करता है. अभी आप मुझसे बोलेंगे, मैं एक गाने को सॉन्ग कंपोज गा के आपको 1 आवर में दे सकता हूँ, बट उसके पीछे का बिहाइंड वर्क होता है. वो वर्क में टाइम जो लगेगा डिपेंड करता है. कई बार वो मेरे को जब जितना टाइम मिलेगा, हो सकता है मैं 1 महीने में भी प्रिपेयर कर लूँ, हो सकता है मैं 15 दिन में भी कर लूँ, बट डिपेंड ऑन टाइम. ओके, जो लिरिक्स होता है इंसान का. अच्छा, मैंने ना रिसेंटली एक मूवी देखी थी. आई थिंक मैं मूवी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट उस मूवी में ना मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी, दैट फीमेल वॉज अ राइटर. यस. ठीक है. एंड दिस फीमेल वॉज सेइंग कि जब हम कोई म्यूज़िक लिखते हैं ना, तो म्यूज़िक को लिख के हमें एक्चुअली सेलिब्रेशन याद आता है, 100%. वो मोमेंट याद आता है 100%. जिस टाइम पे हम वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, और वो हमारे साथ घटना या दुर्घटना घटी है. मगर उस म्यूज़िक को लिखने के लिए जो आर्टिस्ट होता है ना, उसको कितना एफर्ट करना पड़ता है? देखिए, लिखने के लिए एक्चुअली में आर्टिस्ट जो है वो एक आपका लाइक सोर्स ऑफ मिडिल, लाइक सम थिंग्स यू हैव, यू आर टेलिंग टू artist is giving to around the world whatever people listener is there, so they are giving his effort. So it's like connect between two part, so it is the middle of the part,
and it's the most important part. What the themes he will prepare, and he want to say in the the songs and the video like that. That is the main part. 5 सेकेंड की लाइन होती है. आई डोंट नो वो 5 सेकेंड की कौन सी लाइन कहाँ क्लिक हो जाए. सो मीन्स आपके कहने का मतलब यह है कि कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो ब्लास्ट होते हैं 100%. बट हर म्यूजिक में कुछ ना कुछ एक ऐसा मुखड़ा कहते हैं जिसे हाँ जी. एक ऐसा मुखड़ा होता है जो कि हर रील, हर टिकटॉक Correct. और हर जगह पे आपको रिंगटोन पे, स्टेटस व्हाट्सएप टोन पे हर जगह पे सुनाई देगा. पूरा सॉन्ग समटाइम्स नहीं होता है. राइट. तो आई थिंक एक जो टैलेंटेड बंदा है इन द सेंस जो लिरिक्स राइटर्स होते हैं उनके पास तो बहुत सारे वर्ड्स होते होंगे. उनको सिचुएशन हमने बताई एंड ही विल टेक माइट आई डोंट नो हाउ मेनी डेज. तो समटाइम्स उनको एक्चुअली राइटिंग करने से पहले किस तरीके का थॉट प्रोसेस होना चाहिए. मीन्स अगर मैं एक गाना लिखने बैठती हूँ तो मुझे एक्चुअली मैंने सोचा और सब कुछ हो गया बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम इन सम अदर थॉट, तो विल आई बी एबल टू राइट दैट. मीन्स एक राइटर को सॉन्ग राइट करने के लिए इंटरनल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? 100% होती है. 100%. बिकॉज आपको लिखना क्या है, मैसेज क्या है, फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको मिलानी वो चीज़. और मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो लिरिक्सिस्ट इज़ अ मेन पार्ट, राइट. वो आफ्टर दैट है सिंगर. सिंगिंग तो आप भी कर लेंगी. आई विल गिव टू यू द लिरिक्स एंड आई विल टेल यू, आई विल सजेस्ट यू कैन डू दैट पार्ट. द मेन थिंग इज देयर इज द लिरिक्स, व्हाट यू वांट टू गिव द मैसेज, इंस्पिरेशंस एंड like a lot of things there, like a love, relationship, there's a lot of stuff. So this is the main part and it's God gifted also. I will tell you in the podcast. It's the first time people. This is what I wanted to hear. It's a God gifted. God gifted means he's amazing the things, and then he will write, and sometimes he has to match with the tunes. Tunes sound is there, so some word is not matching. So I have to change all the notes. Means a writer should actually have to put himself. Yes, 100%. आपको एक उस सिचुएशन में अपने आप को रखना है. जैसे कि मेरा दिल टूटा या मेरा दिल जुड़ गया. 100%. अभी आई एम हैप्पी तो मैं आपको अपना एक्सप्रेशन बताऊंगी कि आई एम हैप्पी, ऐसा हुआ मेरे साथ, ये हुआ, वो हुआ, एंड देन उसको वहां पे अपने आप को रखना है. हाउ ही इज फीलिंग इंटरनली. Sometimes I'm singing song, I'm forget, I'm in the different flow. Yeah. I'm thinking for that part scenario. So sometimes mistake happens. Yeah. So we are going in the deep for that feel. That's the meaning of music. That is the reason जो म्यूजिक इंडस्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, they do lot of रियाज. 100%. रियाज is required. रियाज is required because आपको कंट्रोल करना आना चाहिए अपने इमोशंस को, because your profession is like कि आप अपने स्विच नहीं कर सकते. 100%. आप अपने दुख को साइड पे रखो, आप अपने हैप्पी मोमेंट का सॉन्ग लिखो. 100%. क्योंकि आपको हैप्पी मोमेंट के पैसे मिल रहे हैं, आपको अपना दुख प्रेजेंट करने के पैसे नहीं मिल रहे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. प्लीज आई शुड से ऑल ऑफ यू, आर्टिस्ट लोगों की कदर करो. बिकॉज पिक्चर बनाने वाले लोग कभी कभी मूवी फ्लॉप हो जाती है बट उसके पीछे का एफर्ट नहीं देखते. हम जस्ट एक जाके रिव्यू दे देते हैं कि भैया ये रिव्यू है, मगर हमें नहीं पता उसने कितने उसमें धक्के खाए, कितनी बार चोटें लगी और कितनी बार वो खुद ही रोया होगा, कितनी बार भूखा रहा होगा, सोया भी नहीं होगा. होती है चीजें कई बार, समटाइम एट द मोमेंट वी आर इंसानी है भगवान. बट हमारे ये ना एक्चुअली हमारी जो आप बोल लो कि हमारे कल्चर्स तो नहीं बोल पाएंगे इसको क्या बोलेंगे, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एक सेकंड में रिव्यू दे देते हैं. 100%. विद इन अ सेकंड यू विल गेट रिव्यू कि हाँ इसमें ये अच्छा नहीं हुआ. इवन आई एम सिटिंग हियर, आई गेट रिव्यूज़. इनिशियली मुझे भी 1-2 लोगों ने रिव्यू दिए थे कि आपकी टोन थोड़ी हार्श थी, यू वर नॉट स्माइलिंग. बट देयर इज अ मोमेंट व्हेन आई हैव टू स्माइल एंड इट शुड कम, इट शुड नॉट बी फेक. इंटरनली आना चाहिए. मैं आप हंस के दिखाती रहूँ तो इट विल नॉट लुक नाइस व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग सीरियस. So it should be like that. So my advice to all of you, or it is not advice, it's just a request, a small request from me. Please accept what you are seeing on the camera. Don't disrespect it if you can't appreciate it. Because everything needs efforts. As he is saying, sometimes टूटे दिल में इनको happy moment के song लिखने पड़ते हैं. Yes. Situation देखो, हमसे खाना भी नहीं खाया जाता. 100%. और an artist is doing for what? For us. For earning, everybody is doing everything. So this is their job and they are doing it for us so that they can produce something very nice. Right? I really am happy that आपने हमें बहुत सारे insights बताए इसके.
आपने ये भी बताया कि आपके क्या और इस साल में एल्बम्स आने वाले हैं, और आपने ये भी बताया कि एक म्यूज़िक 1 घंटे में भी बन सकता है और उसको 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अ राइटर। करेक्ट। आपने हमें ये भी बताया कि लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके म्यूज़िक को, इतना अच्छा व्यू और ऑडियो लिसनर्स हैं हमारे पास, और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। आप खुद जो मैंने कुछ ना पूछा हो आप बताना चाहते हैं? एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें, देखिए मैं बिलीव करता हूँ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। सो डोंट थिंक कि मैंने आज कुछ स्टार्टअप किया मुझे कल ही प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर एक बिजनेस का हर एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, राइट। तो पहले तो लर्न करना पड़ता है अपने को, गिवन दिस काइंड ऑफ थिंग्स गिव एंड टेक है, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि सडनली कोई चीज़ हो जाएगी, सडनली ऐसा कुछ भी, सडनली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मुझे 18 साल लग गए और दिस टाइम इज कमिंग स्लोली करके। तो मुझे वहाँ पे अभी मुझे क्या हो रहा है कि मैंने सफ़र ग्राउंड से किया था तय अपना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने एक बात बोली अचानक से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। आपको 18 साल लगे, राइट? हाँ जी। एंड मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछनी है, उस 18 जो आज आप बैठे मेरे सामने, हाँ जी, आज से वो 18 साल पहले वाला जो हाँ जी दिनेश है, हाउ वाज दैट? मतलब वो दिनेश कैसा था, एंड हाउ फुलफिल आर यू टुडे? Today I'm feeling myself lucky. Okay. So behind that I work slow like that. Right. And people, like people, they are thinking, he's coming suddenly. Suddenly there's nothing coming. Yeah. I was working behind silently. ग्रेजुएशन भी एक बार में नहीं होती ना, नर्सरी से पढ़ना पड़ता है। Silently I was hard working, then I came in my destiny now, and now I'm feeling, yes, every day I'm achieving, like my steps, yeah. Right? It's not like suddenly I'm reaching there. No. I'm going step by step. Now I'm totally blessed from all of us. So एक दिमाग में आया, सडनली हम सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी। और जब हेलीकॉप्टर नीचे आएगा फिर हम नीचे आ जाएंगे। मगर अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ के खुद ही ऊपर जाएंगे ना, तो सीढ़ियाँ उतर के हमें नीचे आने की जरूरत नहीं है, हम स्टेप अप ही करते जाएंगे ना। मैं इस चीज में एक ही चीज बोलूंगा आपको, जो जल्दी चढ़ जाता ना इस पे, वो जल्दी नीचे भी आता है। और अगर हमें टाइम लगा ना, अगर मैं यहाँ से नीचे भी आ जाऊंगा तो मैंने सफर नीचे से स्टार्ट किया है, मैं दोबारा बिल्टअप कर लूंगा। मींस यहाँ पे आप शायद ये बोलना चाहते हैं, जो मैंने एक्चुअली आपके आवाज़ से लिया, इंसान को अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। कभी नहीं। राइट। कभी नहीं। मैं अपना पास्ट अभी तक भी नहीं भूला। मैं आपको आज इस पॉडकास्ट में भी क्लियर कर दूं, मैंने 2 पैंट पे भी नौकरी करी है, ठीक है। इट वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। माई मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे पेरेंट्स ने भी। तो आज मैं अपने आप को, आज मुझे कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है, मैं उतना कैपेबल हूँ। आई कैन बाय, आई कैन वेयर, जैसा मेरा लाइफस्टाइल मुझे रखना है, मुझे खर्च करना है, एवरीथिंग आई हैव। बट मैंने उस 2 पैंट पे भी नौकरी करी है, बहुत स्ट्रगल देखा। दुबई में ऐसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप प्लीज़, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। आई थिंक I don't know what to say right now, but I think your tears are, you can cry now because God is there with you. 100%, you will achieve your targets, you will 100%. achieve your dreams, and we are there with you. My viewers are there with you. Yes. I am there with you. I am your sister 100%, sitting here in front of you. 100%. And then आपकी माँ, हाँ जी, आप हमेशा उनकी बात करते हैं मुझसे। आप अपनी मदर के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, How supportive she was with your dreams. मेरी माँ की मैं आपको बता दूं, आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। तो कुछ इंस्पिरेशन उससे भी है मेरी, ठीक है। वो गाती भी कई बार, अच्छा। इतना अच्छा गाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे फेल्ट हुआ है। तो होपफुली आई विल ट्राई वन सॉन्ग आल्सो विद माय मॉम। यस, मैं यही बोलने वाली थी। हाँ। उनके लिए भी एक गाना बनाएं, ताकि आपके थ्रू हमें भी एक न्यू सॉन्ग फॉर मदर मिल जाएगा। देखिए, माँ के दूध का कर्जा तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, आप भी एक माँ हैं, ठीक है। आप समझ सकती हैं इस बात को। तो मैं एक फीमेल्स की इज्जत बहुत करता हूँ। मेरा एंटरटेनमेंट है, तो भाई मेरे को वर्डिंग उस हिसाब से मिलते भी हैं, मुझे करने भी पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है एज ए आर्टिस्ट। बट ऐसा नहीं है, मैं फीमेल्स की बहुत कदर करता हूँ। ये कहने से नहीं है, ये मैं ऑन कैमरा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी माँ को भी पता है। और एक फीमेल की इज्जत वही कर सकता है जिसकी परवरिश उतने अच्छे लेवल पे हुई होगी, राइट। तो दैट इज द मेन पार्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दुनिया एक्चुअली चलाने वाला, मुझे नहीं पता फीमेल था या मेल था, बट जो कहते हैं ना कि इस दुनिया में आपको लेकर आया है
उसका दर्जा तो आप किसी को नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, कुछ आजकल के हैं हमारे यंगस्टर्स, दे हेट देयर पेरेंट्स, और पिछले भी हैं जो अपने माँ बाप को उठा के ऑर्फनेज और ओल्ड होम एज में भेज देते थे। 100% कदर करो। मगर जो आपके पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो वैल्यू पता चलेगी कि कैसे नहीं था, तो यू मिस्ड समथिंग। सो आज के हमारे पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग फॉर म्यूज़िक, रिगार्डिंग फॉर पर्सनल टच, एंड दिस वाज रियली नाइस एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉक्स विद यू। एंड इसके बाद आपका जो दूसरा सॉन्ग आएगा, उससे पहले हम वापस कैमरा के सामने आएंगे लोगों को बताने के लिए कि इनका नया सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है। इसके अलावा मैं मेरे व्यूअर्स से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को किसी से कम समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप आपके लिए कर सकते हो ना, वो दुनिया में कोई आपके लिए नहीं कर सकता। आपकी मदर हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, आपके फादर हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पुश करते हैं कुछ करने के लिए, रिस्पेक्ट देम, क्योंकि जब वो नहीं होंगे ना तो फिर कोई नहीं होगा आपके साथ। सो रिस्पेक्ट देम। और सेकंड मैसेज मेरा आप सबके लिए ये है, प्लीज़ रिस्पेक्ट आवर आर्टिस्ट, बिकॉज दे आर पुटिंग देयर एवरीथिंग इनसाइड टू एनीथिंग, वेदर इट्स म्यूज़िक, इट्स नेटफ्लिक्स का कोई भी आप सीरीज़ उठा लीजिए, कोई टीवी प्रोग्राम उठा लीजिए, कोई रील उठा लीजिए, व्हाटसोएवर, आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज आर्टिस्ट एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट देम। मैं आप लोगों के लिए मिस्टर दिनेश से एक लास्ट सजेशन पूछना चाहूँगी कि इस दुनिया में जो इंसान अपना पैशन कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए एक वर्ड आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अपने ड्रीम पे काम करते रहिए, ठीक है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें कुर्बानी देनी पड़ती है। अब ऐसा मत सोचो कि आज हमने स्टार्ट किया कल हमें उसका प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इन दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप बिजनेस हो, एक जॉब भी करते हो, सो यू हैव टू वेट 1 मंथ, आफ्टर दैट 1 मंथ आपका सैलरी आपको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो भी सिक्योर नहीं है। कहने को दैट इज़ ओके, ऑफर लेटर सब कुछ है, बट वो डिसाइड नहीं होता है ना। तो आपको यू हैव टू वर्क। कई बार कोलैप्स होंगे, कई बार चीज़ें आएंगी, उतार चढ़ाव। अपनी जर्नी स्टार्ट रखो, खुले दिल से काम करो, खुले मन से काम करो, नियत माड़ी मत रखो। राइट। मेरा एक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। नियत तो एक्चुअली इज़ अ कोर ऑफ एवरीथिंग। 100%। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको हम नियत बोलते हैं, अगर आपका वही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको इस दुनिया में कुछ कोई नहीं करने देगा और आप कर ही नहीं पाएंगे। और ऊपर वाला भी आपका साथ जब ही देगा जब आपकी नियत अच्छी है। वो एक कहावत थी ना, बहुत बचपन में मेरे पापा सुनाया करते थे कि सोए हुए शेर दे मुंह विच भी हिरन खुद नहीं चल के जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। शेर नू एफर्ट करना पैंदा है पकड़ने से पहले। 100%। तो अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से एक्चुअली इट्स अ चेन। करेक्ट। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं कर नहीं पाई, मैं ब्लेम पड़ोसियों को कर रही हूँ या जिसको भी कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मरने से पहले मैं खुश नहीं हूँ। 100%। क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, बट एक जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की, विच इज़ एफर्ट। करेक्ट। सो मेक योर डिसीजन, मेक योर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग, डू योर एफर्ट्स, एंड अगर तब नहीं होता तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा। राइट। क्योंकि कहते हैं ना, उसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। राइट। सो दिस इज मी साधना एंड दिस इज माई चैनल द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।